بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے. قرآن پاک کی اس آیت میں بھی فقہ کا تذکرہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں بھی فقہ کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی کام کے لیے جا رہے ہیں. اس آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے اس امید پر کہ وہ بچیں. یہ سورت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے، جس وقت اسلام ملک عرب کے بہت سے حصے میں پھیل چکا تھا. اب بات یہ تھی کہ جو لوگ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں وہ تو جب کوئی مسئلہ پیش آتا خود حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیتے. لیکن جو لوگ دور رہتے تھے نہ تو خود نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مسئلہ بتانے کے لیے وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں اور نہ وہ ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں. تو دین آ کر ان تک بھی پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان وہ کون سا واسطہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کا رسول قابل اعتماد سمجھے اور ان کے ذریعے پہنچا ہوا دین خدا اور رسول کے نزدیک پسندیدہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت فقہا کی ہوگی. فقہا کے ذریعہ سے جو دین پہنچے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل اعتماد ہوگا اور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بھی قابل اعتماد ہوگا. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فقہا کی بجائے قاری اور حافظ کا نام لے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں محدث کا ذکر فرما دیتے. قرآن اور حدیث کا لفظ آ جاتا. آخر اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فقہ کا تذکرہ فرما دیا. تو قرآن پاک کیونکہ ایک کامل کتاب ہے اور اسلام مکمل دین ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ ایسا استعمال فرما دیا جس میں یہ ساری چیزیں آ گئی. کیونکہ فقہ کی بنیاد 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر اول کتاب اللہ شریف قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نمبر 3 اجماع امت
और नंबर 4 कियास शरई। तो जब फिका का लफ्ज बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि जाने वाला फकीह कुरान भी साथ लेकर जाएगा, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी साथ लेकर जाएगा, उम्मत के इजमाई मसाइल भी साथ लेकर जाएगा, और जो नए मसाइल सामने आएंगे उनका हल भी कियास शरई से दरियाफ्त कर लेगा। तो दीन इस्लाम के लिए फिका नहायत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर मसाइल मुकम्मल नहीं होते। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये दीन के पहुंचाने का जो काबिल एतमाद जरिया है ये तो कहा है। मसलन एक आदमी एक इलाके में सिर्फ कुरान पाक लेकर चला गया, उसने जाकर कुरान सुनाया कि अकीम सलाह नमाज कायम करो। अब वो लोग पूछते हैं कि कितनी रकतें पढ़े, तो कुरान पाक में उन रकतों का कोई तज़किरा नहीं। तो कुरान पाक पहुंचने के बाद भी नमाज का मुकम्मल तरीका उन लोगों को मालूम नहीं। अब कोई शख्स दूसरी हदीस की किताब लेकर चला गया, उसमें ये तो मिला कि हजरत ने 4 रकत अदा फरमाई, फिर 4 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत जोर की अदा फरमाई, लेकिन ये तफसील के इसमें कौन कौन सी रकतें सुन्नत है, कौन कौन सी फर्ज है, कौन कौन सी नफल है, ये तफसील अहादीस में मौजूद नहीं। तो अब इसकी भी जरूरत बाकी रही। तो बगैर फिका के दीन के मसाइल मुकम्मल नहीं होते। इसीलिए आज हम जो नमाजें पढ़ रहे हैं वो इसी फिका के मुताबिक पढ़ रहे हैं, रोजों के मसाइल मालूम करते हैं तो इसी फिका से मालूम करते हैं, हज करते हैं तो मुकम्मल मसाइल सिर्फ फिका ही से हमें मिलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही कामिल और मुकम्मल जरिया यहाँ बयान फरमाया कि कुछ लोग फकीह बने। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि ये सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी मादरी जबान पंजाबी थी या सराइकी थी? अरबी थी। तो वो कुरान पाक की अरबी आयात सुनकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी अहादीस सुनकर उनका मतलब समझ लेते थे या नहीं? हमसे बेहतर समझते थे या कुछ कम समझते थे? जाहिर है कि वो हमसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते थे। तो अगर कुरान पाक का तर्जुमा जान लेने का नाम फिका होता, हदीस का तर्जुमा जान लेने का नाम फिका होता, तो उनमें से हर एक आदमी हमसे ज्यादा अच्छा तर्जुमा समझता था, उनमें से हर शख्स हमसे ज्यादा बेहतर मतलब हदीस का जानता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उन तर्जुमा जानने वालों को, मतलब समझने वालों को फरमाया कि हर जमात में से कुछ आदमी बैठ जाएं और फकीह बने। मालूम हुआ कि सिर्फ अल्फाज का याद करना फिका नहीं, सिर्फ तर्जमे का याद कर लेना इसका नाम फिका नहीं। कोई बुखारी शरीफ का उर्दू तर्जमा पढ़कर समझे कि मैं फकीह बन गया हूँ, तो उसने कुरान पाक की इस आयत को समझा नहीं। फिका और गहराई का नाम है। तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके इन सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला जो फरमा रहे हैं कि हर फिरके में से एक एक आदमी बैठ जाए। अब आप सोचेंगे कि वो फिरके चाहते थे, तो उस जमाने में फिरके ये नहीं थे जो आजकल बने हुए हैं। जैसे आप रायगंज में इज्तिमा के मौका पर देखते हैं कि जिला रहीम यार का के लोग एक जगह बैठे हैं ताकि आपस में सफर में कोई तकलीफ और परेशानी न हो, दूसरे जिले के लोग एक जमात बनाकर बैठ जाते हैं ताकि आपस में सहूलत रहे। इसी तरह सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो जिहाद के लिए जा रहे हैं उनमें मजहबी फिरके नहीं थे। मिन कुल्ल फिरकतिन का जो लफ्ज है उनमें यही था कि एक एक कौम के लोग अलग अलग अपनी जमात बनाकर एक एक इलाके के लोग जा रहे थे ताकि सफर में किसी किस्म की परेशानी हो तो एक दूसरे की वाकफियत हमारे लिए उन परेशानियों के दूर होने का बायस बनती रहे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब ये जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हर कौम हर फिरके का कम से कम एक एक आदमी फकीह जरूर बने। अब जब ये फकीह बन जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ये यहाँ से फकीह बनकर अपनी कौम में चला जाएगा। अब सारी कौम इस एक फकीह के फिका पर अमल करेगी और इसकी तकलीद करेगी, इससे दीन के मसाइल पूछ कर उन पर अमल करेगी और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों से उनको डराएंगे ताकि ये लोग खुदा की नाफरमानी से बच सकें। तो इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि अल्लाह का दीन आगे पहुंचाने के लिए सबसे काबिल एतमाद जरिया फोका आता है।
और फुकहा के पास मुकम्मल दीन होता है, उनके पास दीन का कोई खास एक पहलू नहीं होता। इसको आप एक मिसाल से समझें। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके पास एक उर्दू की किताब है, एक माशरती उलूम की किताब है, एक दीनियात की किताब है, एक अंग्रेजी की किताब है। इन सारी किताबों में एक मजमून है, लेकिन एक उसके पास गाइड होती है जिसमें तमाम मज़ामीन यकजा होते हैं। तो फिका क्या है? ये इस्लामी उलूम की गाइड बुक है। कुरान पाक के तमाम मसाइल फिका में आ जाते हैं। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मसाइल फिका में आ जाते हैं। उम्मत के इजमाई मसाइल सारे फिका में आ जाते हैं, और क़ियास शरई के भी तमाम मसाइल फिका में आ जाते हैं। तो फिका के समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब देखिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मक्खी तुम्हारे सीने की चीज में गिर जाए तो उसे गोता देकर निकाल कर फेंक दो। अब ये अल्फाज मुझे याद है, इसका तर्जमा भी याद है, लेकिन एक आदमी आ गया, उसके पास दूध का गिलास है और उसमें 2 मच्छर गिरे हुए हैं। वो कहता है कि ये मच्छर निकाल दें, किस तरह निकालने चाहिए, इसका मसला क्या है? तो अब हदीस में मच्छर का लफ्ज कहीं आता ही नहीं कि मच्छर गिर जाए तो किस तरह निकाला जाए। और सैकड़ों जानवर मौजूद है छोटे छोटे, वो सारे गिर जाए तो किस तरह निकाले जाए? तो इसके लिए अब अल्फाज मुझे भी आते थे, तर्जमा मुझे भी याद था, लेकिन फकीह ने मुझे ये बताया कि इन अल्फाज के नीचे अल्लाह के नबी ने एक कायदा बयान फरमाया हुआ है जो हर शख्स को नजर नहीं आता। इज्तिहाद की दूरबीन लगाने से वो नजर आया करता है। तो उन्होंने बताया कि इसके नीचे कायदा ये है, मक्खी एक ऐसा जानवर है जिसकी रगों में दौड़ने फिरने वाला खून नहीं। अब हर वो जानवर जिसकी रगों में ये खून नहीं है, उसको मक्खी पर कियास करके उसका वही हुक्म मालूम कर लिया जाएगा जो मक्खी का है। तो मच्छर की रगों में भी दौड़ने फिरने वाला खून नहीं। अब मच्छर को मक्खी पर कियास करके निकाल दिया। इसी तरीके से भेड़ है, जुगनू है, कीड़ियां हैं, चींटियां, इनकी रगों में भी दौड़ने फिरने वाला खून मौजूद नहीं। अगरचे हदीस में इनका जिक्र नहीं आया कि ये पीने की चीज में गिर जाए तो क्या किया जाए, लेकिन फकीह ने हदीस से भी एक कायदा हासिल करके इन सब का हुक्म मालूम कर लिया। इसको कहते हैं फिका। यानी किताब सुन्नत के अल्फाज में भी बहुत से मसाइल हैं और बहुत से मसाइल इसकी तह में अल्लाह तबारक व तआला ने मस्तूर रखे हैं। जिस तरह सतह समुंदर, इसकी सैर भी इंसान के लिए, सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन बहुत से मोती इसकी तह के नीचे छुपा रखे हैं। उनको हासिल करने के लिए गोताखोर की जरूरत पड़ती है। हर आदमी का ये काम नहीं। अब गोताखोर नीचे से निकाल लाए और हम शुक्रिया अदा करके उससे हासिल कर ले, इसको तकलीद कहते हैं। और तरके तकलीद इसका नाम है कि मुझे गोता लगाना तो आता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इस गोताखोर से मोती लेने के लिए तैयार नहीं। अब सब दाना मुझे यही समझाएंगे कि जब तू गोताखोर नहीं है तो तू गोता ना लगाना, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब ये खुद गोता लगाकर नीचे से लाया है तो मैं भी खुद नीचे जाऊंगा। चुनाचे उसके बाद सबके रोकने के बावजूद मैंने गोता लगा दिया। अब लोग सारे देख रहे हैं कि बाकी गोताखोर तो मोती लेकर आ गए हैं, लेकिन ये खुद ही ऊपर नहीं आया। तो तकलीद कहते हैं कि गोताखोर से मोती लेकर इस्तेमाल कर लिया जाए, और किसी को मुकल्लिद कहते हैं और गैर मुकल्लिद कहते हैं जो खुद डूब कर मर जाए, ना मोती नसीब हो और ना जिंदगी बाकी रहे उसकी। तो इसलिए फिका जो है ये किताब सुन्नत की तह से मसाइल के दरियाफ्त कर लेने का नाम है, और दीन के मुकम्मल मसाइल सिर्फ फिका में मिलते हैं और किसी इल्म में नहीं मिलते। तो ये जो फुकहा बनेंगे ये क्या काम करेंगे? पूरी कौम का एतमाद अपने उस फकीह पर होगा, फतवा इन्हीं का चलेगा। उलमा हजरात जानते हैं कि आयत में जो लफ्ज वाले युनज़िरू कौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम आया है, ये इंज़ार, नज़ीर और बशीर सिफ़तें दरअसल नबियों की अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कुरान पाक में। इस आयत में ये सिफ़त फुकहा की बयान फरमा के बता दिया कि नबियों के अगर कामिल वारिस है तो सिर्फ और सिर्फ फुकहा है। इसलिए अल्लामा सरसी रहमतुल्लाह अलैह मबसूत का खुतबा यहीं से शुरू फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जाला विलायतुल इल्ज़ार लिल फुकहा बादल अंबिया। अल्लाह ताला की तारीफ है
कि तारीफ खुदा ही के लिए है कि जिसने फुकाहा को नबियों का वारिस बना दिया। तो इस आयत में भी फुकाहा को नबियों का वारिस करार दे दिया गया है। और ये इल्जार और यह जरूर बचना और डराना, इन अल्फाज पर गौर करें तो बिल्कुल यही मफहूम कानून का हुआ करता है। तो मतलब ये कि कानून जो है वो फिका का ही नाफिज होगा जब भी नाफिज होगा। एक दोस्त तकरीर कर रहा था और बड़े गुस्से में कहने लगा कि मैंने पक्का इरादा कर लिया और कसम खा ली है कि फिका को मुल्क से निकाल के दम लूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अभी तो तू फिका अपने मुफ्तियों से नहीं छीन सका। तेरे मुफ्ती हमारी फिका पर फतवे दे रहे हैं। फतावा नजीरिया में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा सनाइया में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा सत्तारिया में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा उलमाए हदीस में फिका हनफी के हवाले हैं, फतावा गजनिया में फिका हनफी के हवाले हैं। तो जो अभी अपने मुफ्तियों से फिका नहीं छीन सका वो फिका को मुल्क से कैसे निकाल देगा। मैंने कहा अभी तक तो आप फिका को अपने मदरसे से नहीं निकाल सके। तुम्हारे मदारिस में हमारी किताब हिदाया पढ़ाई जा रही है, शरह वकाया पढ़ाई जा रही है, चंदा हदीस के नाम पर लिया जाता है और तनख्वाह फिका बढ़ाकर ली जा रही है। तो ये बताया जाए कि तुम्हारे सुबुल पर ये तनख्वाह जायज भी है या नाजायज। तो मैंने कहा कि आपने अगर जरूर तजर्बा करना है तो मुल्क से निकालने से पहले अपने घर से निकाल कर देखे, एक घर से। उसने कहा जी निकाल दी। अब जनाब जोर का वक्त आ गया, नमाज पढ़नी है, सब बैठे हैं। कहता भी नमाज पढ़ो। उसने कहा कि नमाज की तो शर्तें भी मालूम नहीं कितनी है, क्योंकि फिका में लिखी थी वो किताब हम बाहर रखा है जाते। नमाज की रफ्तों की तकसीम का इल्म नहीं है कि सुनते की नियत कितनी रफ्तों में करनी है, फर्ज कितने पढ़ने हैं, नवाफिल कितने हैं। ये तकसीम फिका की किताब में थी। अब हम पढ़े क्या? नमाज के अरकान का पता नहीं, भूल के मसाइल, सजदा साहब के मसाइल का एक दो मसाइल के सिवा कहीं पता नहीं चलता। तो अब कैसे नमाज पढ़े? तो उसने कहा कि इसका तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ फिका से नहीं गए, खुदा से भी गए हम, क्योंकि खुदा की इबादत करने का तरीका पूरा हमें मालूम नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा चलो सोचते हैं, कुछ सलाह करेंगे उनसे, खाना तो ले आओ। उसने कहा क्या लाऊं? उसने कहा दूध ले आओ। उसने कहा दूध तो भैंस का है और भैंस का लफ्ज कुरान में भी नहीं और हदीस में भी नहीं। तो भैंस का दूध तो फुकहा ने कियास से जायज किया था। तो जब फिका निकाली भैंस भी उनके घर बांध आए हम, इसलिए ना दूध किस्मत में रहा, ना चाय किस्मत में रही, ना घी किस्मत में रहा, ना मक्खन किस्मत में रहा, ताकि लस्सी तक किस्मत में नहीं रही। तो ऐसी फिका निकाल ली, अब क्या करें? उसने कहा फिर और कोई चीज। उसने कहा दाल पकाई थी पानी में, वो है, अगर कहे तो ले आऊं। उसने कहा चलो वही ले आ। अब ऐसी हदिया थी, कदर थी नहीं, उसे ढांका नहीं, उसमें जरा मच्छर गिर के मरा हुआ है, चींटियां गिर कर मरी हुई हैं, 2-3 भेड़े उसमें दिन बना रही हैं, 2-4 मक्खियां डूबने की हैं और 8-10 चींटियां मरी हुई हैं। उसने कहा अल्लाह की बंदी इसको साफ तो कर देती। उसने कहा कैसे साफ करूं? फिका के बगैर चींटी निकलती नहीं, फिका के बगैर मच्छर निकलता नहीं, फिका के बगैर ये भेड़ निकलती नहीं, फिका के बगैर जुगनू निकलता नहीं, फिका के बगैर तो ये साफ ही नहीं होगा। इसलिए जब फिका को घर से निकाल दिया है तो अब क्या सूरत होगी? अब तो यही है कि चींटियां खानी पड़ेंगी। ये भेड़ जो है ये जबान को काट काट के खाएगी, ये निकल नहीं सकती, क्योंकि वो जबान जो फिका के खिलाफ बोलती है उसका इलाज यही है कि भेड़ियों से काट काट कर खाए। और अगर फिका को ना माना गया तो वो निकल सकती नहीं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दीन उस वक्त तक गालिब रहेगा जब एक जमात जिहाद में मसरूफ रहे और दूसरी फिका में। उस वक्त तक फरमाया दीन को सरबलंदी हासिल रहेगी। मुजाहिदीन का काम क्या है? मुल्क गिरी, मुल्क हासिल करना। क्या काम है? मुल्क हासिल करना। और फुकहा का काम क्या है? उस मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करना। तो इसी चीज से सरबुलंदी रहेगी ना। अब देखिए कानून जो है वो जब भी नाफिज हुआ फिका की शक्ल में नाफिज हुआ। अब हम जब मुतालबा करते हैं कि फिका हनफी को नाफिज किया जाए तो कई तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि फिका को हम नहीं मानेंगे, सिर्फ इस्लाम का कानून आए
और किताब और सुन्नत का कानून आए। लेकिन ये एक फरेब है, इसको जरा समझे मिसाल से। आपके मुल्क में ही तो कोई कानून चल रहा है या नहीं चल रहा है ना? तो आपके मुल्क में एक तो आइन होता है, मतने कानून। क्या होता है? आइन। उसी का नाम इस्लाम में किताब और सुन्नत है। जो आइन है उसी का नाम क्या है? किताब और सुन्नत। अब बाज़ औक़ात आइन में कोई चीज काबिल तशरीह हो तो कौमी असेंबली खुद उसकी तशरीह कर देती है। तो इसी कौमी असेंबली की जगह इस्लाम में खिलाफत रास्ता है और हर खलीफा राशिद उस असेंबली का स्पीकर है। तो अब देखिए, कोई शख्स सिर्फ आइन का नाम ले लेकिन खिलाफत रास्ता को छोड़ना चाहे, कौमी असेंबली से सरफ नजर करे तो वो मुल्क में मुल्क के आइन को चला सकता है। फिर उसके बाद आपके हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है। उसका चीफ जस्टिस जो है ये कानून साज नहीं होता, कानून दान होता है। लेकिन अपने मुल्क के कानून का इतना माहिर होता है कि उसका फैसला बतौर नजीर कानून की किताब PLD में नकल कर लिया जाता है। और जितनी मातहत अदालतें हैं, DC साहब के यहाँ केस आए, कमिश्नर साहब के यहाँ केस आए, सीनियर सिविल जज के पास केस आए, तो वो उस PLD का हवाला देकर फैसला करता है, उसके हवाले के बगैर कोई फैसला नहीं करता। तो ये इसको आप अपनी इस्लाह में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहते हैं। इसे इस्लामी इस्लाम में मुजतहिद कहा जाता है। मुजतहिद भी कानून साज नहीं होता, कानून का माहिर होता है। और जिस तरह मुजतहिदीन के फैसले PLD में महफूज कर लिए गए, इसी तरह इस्लाम के मुजतहिदीन के फैसले PLD में महफूज कर लिए गए। ये हिदाया, ये आलमगिरी, ये शरह बिकाया, ये किताबें बिल्कुल ऐसी हैसियत रखती हैं इस्लाम में जैसे आपके मुल्क में PLD की किताबें। और जिस तरह मातहत अदालतें इस PLD का रेफरेंस पर हवाला देती हैं, इसी तरह जो मुफ्ती हैं वो काला अबू हनीफा, काले शाफी, काला अहमद कहकर अपना फैसला और फतवा नकल करता है। लेकिन बाद औक़ात चीफ जस्टिस एक होता है और बाद औक़ात एक फुल बेंच बैठता है, जिसे आपकी इस्लाम में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और इस्लाम की इस्लाम में उसे इजमाए उम्मत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजमाए उम्मत। तो अब कोई आदमी ये कहे कि सिर्फ पाकिस्तान का आइन रहे और ये हाई कोर्ट से खत्म कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट से मुल्क से खत्म कर दी जाए, मातहत सारी इदारतें खत्म कर दी जाए, तो क्या मुल्क का कानून चल सकता है? आजकल जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तो आए लेकिन इस्लाम में क़ियासे शरई और इज्तिहाद और फिक़ह को दखल ना हो, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कोई ये कहे कि आईने पाकिस्तान तो नाफिज रहे लेकिन मैं सूबा पंजाब में रहता हुआ हाई कोर्ट के फैसलों को कबूल नहीं करूंगा। तो अगर हाई कोर्ट का फैसला ही सूबे में रहकर कबूल नहीं तो कानून नाफिज कौन करेगा यहाँ, और कानून चलेगा किसके जरिए से? कोई आदमी ये कहे कि कानून इस्लाम मसाइल जो हैं वो बतौर कानून नाफिज न किए जाए, तो ये ऐसी ही बात है जैसे कोई ये कहे कि मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हुआ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या कोई मुल्क किसी बेवकूफ के कहने से अपनी सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर सकता है? क्या कोई सूबा बगैर हाई कोर्ट की अदालत के अपने कानून को आगे चला सकता है? कोई आदमी ये कहे कि मैं जिले में रहूंगा लेकिन DC के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, मैं डिवीजन में आबाद रहूंगा लेकिन कमिश्नर के फैसलों का पाबंद नहीं होगा, क्योंकि ये PLD के हवाले देते हैं, सीधे आइन के हवाले नकल नहीं कर रहे। तो ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं मुसलमान तो कहलाऊंगा लेकिन इस्लामी मुफ्तियों के फैसले मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये अपने फतवे में काला अबू हनीफा लिखते हैं, ये काले शाफी लिखते हैं, ये काला अहमद लिखते हैं, ये काला मालिक लिखते हैं। तो जिस तरह मुल्क में कानून नाफिज होता है इसी तरह हर कानून होता है। जिस तरह इसमें हाई कोर्ट की भी जरूरत है और इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत है, इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता, और मातहत अदालतों की भी जरूरत है, इससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। जब भी कोई आदमी अदालत का फैसला सुनता है तो उसे एक ही पता होता है
कि ये फैसला इस जज की जाती राय नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून का फैसला है। जब भी वो हाई कोर्ट का फैसला सुनता है तो उसके जेल में एक ही बात होती है कि ये इस जज की जाती राय नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान का ही फैसला है। बिल्कुल इसी तरह हजरात आइमा मुजतहिदीन वो जो फिका मुरत्तब फरमा गए हैं ये उनके जाती फैसले नहीं है बल्कि किताब और सुन्नत से इस्तेमाल करके उन्होंने ये फैसले दिए हैं। तो अब मैं आप हजरात से ये पूछता हूँ कि आपके सामने कोई आदमी आए और कहे कि भाई मुझे वोट दो, मैं हुकूमत बनाऊंगा, तो आप पूछे हुकूमत बनाने के बाद तेरा मंशूर क्या होगा, तो वो कहे कि सारी हाई कोर्टें बंद करूंगा, तमाम सुप्रीम कोर्टें खत्म कर दूंगा, तमाम मतहत अदालतें जो है ये इनको खत्म कर दूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो मुल्क में कानून चलाने की अहलियत रखता है? ऐसा आदमी जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकब है या नहीं? तो ऐसे लोग जो तौहीन अदालत के मुर्तकब होते हैं वो दरअसल कानून के ही मुनकर हुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये नहायत आसानी से ये बातें समझाई हैं क्योंकि वजह ये है कि फिका की जरूरत बहुत ज्यादा है और आवाम को है, इसलिए ऐसे अंदाज में समझाई गई ये जरूरत कि हर आदमी इसको समझ जाए। कुरान पाक से जब पूछा गया कि दरअसल ये फिका कहते किसको है तो कुरान ने एक मिसाल बयान फरमाई, अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, यानी जिस तरह कुछ पानी अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर पैदा कर रखा है ना, दरियाओं की शक्ल में बह रहा है, बहुत सा पानी का जखीरा जमीन की तह में नीचे छुपा रखा है। तो अल्लाह ताला ने पानी की मिसाल देकर समझाया कि जितना तुम्हारी जिंदगी में पानी जरूरी है, खा तुम किसी इलाके में रहते हो, इतनी ही तुम्हारी इस्लामी जिंदगी के लिए फिका जरूरी है। जिस तरह तुम पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, इसी तरह तुम फिका के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन आप हर जगह पानी पीते हैं या नहीं, इस्तेमाल करते हैं या नहीं? अब वो पानी आप किसी के कुएं से ले आए, किसी के नलके से ले आए, किसी के ट्यूबवेल से ले आए, आपके दिल में कभी ये मसला पैदा हुआ कि ये पानी नलके वाले आदमी ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ नहीं? कभी आपके दिल में ये मसला आया कि ये पानी कुआं खोदने वाले ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ नहीं? कभी आपके दिल में ये मसला आया कि ये पानी ट्यूबवेल लगाने वाले ने पैदा किया है, खुदा का पैदा किया हुआ नहीं? आप रोजाना पानी पीते हैं, एक ने नलका लगा दिया, रास्ते में आपने पानी पिया, पहले शुक्र खुदा का अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तेरी नेमत है, और फिर उसके लिए भी दुआ की कि या अल्लाह उसको भी खुश रखो जिसने रास्ते में गर्मी में ये नलका लगा दिया और तेरे पैदा किए पानी को जाहिर कर दिया है ताकि उसका इस्तेमाल आसान हो जाए। तो जैसे ट्यूबवेल में जो पानी है, कुएं में पानी है, नलके में पानी है, ये खुदा का ही पैदा किया हुआ है। इस नलका लगाने वाले ने सिर्फ आसानी बना दी है हमारे लिए ताकि उस पानी का इस्तेमाल हमारे लिए आसान हो जाए, वरना ये एक कतरा भी पानी इसने खुद पैदा नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इस्तिंबात यहाँ बयान फरमा के ये बात समझा दी कि जिस तरह हर इलाके में तुम्हें पानी की जरूरत है और पानी पीते हुए कभी तुम्हें ये वसवसा नहीं आया कि नलके का पानी खुदा ने पैदा नहीं किया, इसी तरीके से आज तक आपके दिल में कभी वसवसा आया था? अब कोई बेवकूफ और पागल ये शोर मचाए कि देखो जो पानी बराह रास्त आसमान से आता है उसके नीचे यूं मुंह करके पीना, ये तो खुदा का पानी पीना है, और नलके से पानी पीना शिरक है क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत का दखल हो गया है। कुएं से पानी पीना हराम है क्योंकि ये पानी इंसान ने मेहनत करके निकाला है। ट्यूबवेल से पानी पीना शिरक है, कुफर है, बिदअत है क्योंकि इसमें इंसानी मेहनत का दखल हो गया है। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी आसान और आम फहम मिसाल से हमें बात समझा दी। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ कि एक फिरका खड़ा हो जाए, एक जमात, कि भाई आप हमें वोट दें, हम मुल्क में कानून बनाना चाहते हैं। आप उनसे पूछें आपका मंशूर क्या है, वो कहे कि जब हम बरसर हुकूमत आएंगे तो किसी घर में नलका नहीं रहने देंगे, जब हम बरसर हुकूमत आएंगे तो दुनिया में कोई कुआं बाकी नहीं रहने देंगे, जब हम कि भाई आप हमें वोट दें, हम मुल्क में कानून बनाना
चाहते हैं। आप उनसे पूछें आपका मंशूर क्या है, वो कहे कि जब हम बरसरे हुकूमत आएंगे तो किसी घर में नल का नहीं रहने देंगे। जब हम बरसरे हुकूमत आएंगे तो दुनिया में कोई कुआं बाकी नहीं रहने देंगे। जब हम बरसरे हुकूमत आएंगे तो कोई ट्यूबवेल बाकी नहीं रहने दिए जाएंगे। सिर्फ बारिश के पानी पर गुजारा होगा। और इसके सिवा क्योंकि हम खुदा के मानने वाले हैं, हम इन बंदों के पीछे लगने वाले नहीं हैं। तो मैं आप हजरात से पूछता हूँ कि क्या ऐसा फिरका मुल्क को कामयाब करेगा या उजाड़ेगा जी? तो अब देखिए, ये कहना कि हम इस्लाम चाहते हैं लेकिन इस्लामी फिका का कानून नहीं आएगा, ये बिल्कुल ऐसी ही जहालत और बेवकूफी की बात है कि हम मुल्क में कानून चाहते हैं, पानी की जरूरत जरूर है लेकिन नलके का पानी नहीं होगा, नलका उखाड़ दिया जाएगा, ट्यूबवेल बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो क्या ऐसा फिरका कभी मुल्क को चला सकता है? जो फिरका आज तक हमारे सामने इस बात से हाजिर है कि वो एक रकत नमाज के मसाइल नहीं बता सकता, वो भी ये दावा कर सकता है कि मैं मुल्क को चला सकता हूँ। जो एक रकत के नमाज के मसाइल हमें नहीं बता सकता, जो प्याली चाय में पड़ी हुई मक्खी नहीं, मच्छर नहीं निकाल सकता, जैसे झूठे खुदा को मच्छर ने मार डाला था ना, ये झूठा मर्द तो एक मच्छर से मर जाता है। वो लंगड़ा मच्छर सामने टी कर रहा है कि हिम्मत है तो निकालो मुझे बोला। अरे जो मच्छर से मार खा जाए वो मुल्क का कानून चला सकता है? उनको क्या हक है कि मुल्क में कानून चलाने का दावा करें? सही बुखारी शरीफ में एक और मिसाल है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन मुझ पर नाजिल फरमाया, इसकी मिसाल बारिश के पानी की। जब ये बारिश जमीन पर नाजिल होती है तो जमीन तीन किस्म की होती है। एक नशीली सी जमीन जहाँ पानी की शक्ल में तालाब बनकर खड़ा हो जाता है। एक वो खेत है जिसको बुखारी शरीफ में हजरत ने अर्ज़े तैयबा बयान फरमाया कि वो पाकीज़ा जमीन, उसने अपना सीना खोल दिया और पानी अंदर जज्ब हो गया। अब हमारी जिंदगी की तमाम जरूरियात अल्लाह ताला ने उसी पानी की बरकत से उस खेत में पैदा फरमा दी। हमें गंदम की जरूरत है तो वो कहाँ होती? तालाब में या खेत में? हमें गन्ने की जरूरत है, वो कहाँ होता है? हमें जवार बाजरे की जरूरत है, वो कहाँ मिलता है? हमें कपास की जरूरत है, वो कहाँ होती है? हमें आम, अनार, केला, इन फलों की जरूरत है, वो कहाँ होते हैं? हमें फूलों की जरूरत है खुशबू के लिए, वो कहाँ होती है? हमें जड़ी बूटियों की जरूरत है दवा दारू के लिए, वो कहाँ होती है? तो इसको हजरत ने फिका से ताबीर फरमाया। तालाब मिसाल है हदीस की किताब की। किस किताब की? जिस तरह तालाब में हर पढ़ा लिखा या अनपढ़ अपनी आंखों से पानी देख लेता है, इसी तरह हदीस की किताब में हर आदमी को काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज नजर आ जाते। लेकिन खेत में हर वक्त पानी नजर नहीं आता। अकीदा यही होता है कि इस खेत में जितनी भी फसल पैदा हुई है वो सारी उसी पानी की ही बरकत है। अब खेत मुकम्मल है और तालाब इसमें मुकम्मल चीजें नहीं, इसीलिए ये तालाब वाला खुद भी बेचारा खेत वाले से जाकर चीजें वसूल करता है। यही वजह है कि जितने भी मुहद्दिसीन हुए हैं वो किसी न किसी इमाम के मुकल्लिद हुए। मुहद्दिसीन के हालात में जो किताबें खुद मुहद्दिसीन ने लिखी हैं वो चार ही किस्म की हैं: तबकात हनफिया, तबकात शाफिया, तबकात मालकिया, तबकात हनाबिला। तबकात गैर मुकल्लिदीन नामी कोई किताब किसी मुहद्दिस ने मुहद्दिसीन के हालात में नहीं लिखी। तो इसलिए ये खेत और तीसरी जमीन वो है जो एक टीला था, ना तो वहाँ पानी तालाब की शक्ल में खड़ा हुआ और ना वहाँ खेत की तरह कोई फसल होगी। लेकिन जो लोग यहाँ आबाद हैं इनको भी जरूरियात जिंदगी की जरूरत है या नहीं जी? अब ये जरूरियात जिंदगी खेत वाले से हासिल करेंगे या नहीं? और हासिल करने के तरीके दो हैं, एक जायज और एक नाजायज चोरी कर लेना। तो जायज तरीके से उनसे चीज ले लेना इसको कहते हैं तकलीद। क्या कहते हैं? तकलीद। जायज ताल्लुक से चीज ले लेना और चोरी कर लेना। गन्ने यहाँ से उखाड़े और दो चार जूते खा लिए चोरी करके और छलियां अगले खेत से जाकर तोड़नी शुरू कर दी।
आखिर जिंदगी तो बेचारों ने गुजारनी है ना। तो इसी तरह कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा, बेचारों का कोई मजहब ही नहीं। कोई पर एक लतीफा याद आया, शादी थी किसी की, तो शादी में मेहमान दो तरफा होते हैं, एक बारात के साथ आते हैं और एक लड़की के घर वालों में, हम तो मेल कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं उन्हें। एक आदमी ने रोटी खानी थी, था नहीं रिश्तेदार उनका, उसने सोचा कि किसी तरह मैं भी बैठ जाऊं। अब सोचने लगा कि बारात वालों में बैठूं या मेल वालों में बैठूं। तो उन्होंने सोचा रहा, आखिर दरमियान में बैठ गया एक जगह। अब बारात बैठी है, आपस में तारुफ हो रहा है कि ये कौन है, ये लड़की का छोरा है। चलते चलते रिश्ते पूछे जा रहे हैं। अब उस पर भी है कि तू कौन है, उसने कहा कि मैं लड़की का चचेरा हूँ। वो लोग कहने लगे ये कोई न्याय रिश्ता है गैर मुकद्दम वाला, पहले तो कभी सुना नहीं। चचेरा क्या होता है? उसने कहा कि लड़की का बाप और मैं किसी जमाने में इकट्ठे टट्टू चलाया करते थे। अब वो समझ गया कि ये सिर्फ खाने का बहाना है रिश्ता, ये रिश्ता हम नहीं जानते। तो गैर मुकद्दम में ऐसा रिश्ता तो हो, वरना आम लोगों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप जाएं, हमें ऐसे रिश्ते को पहचानते नहीं। अब ये बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि खाना खाना था, नया रिश्ता भी करा, लेकिन फिर तो इसके पास एक डंडा था, इसने मुंह को लगा लिया और बाजू वालों में खड़ा हो गया जाके। इसे लोग बाजू वालों में खड़े हो जाते। अब जब बाजे वाले रोटी खाने लगे तो खिलाने वाले ने देखा कि बाकियों के पास तो कोई ना कोई बाजा है, ये एक डंडे वाला दरमियान में चल रहा है, ये कौन है? तो उसने कहा भाई देखो रोटी खा लो, लेकिन पहले अपना अपना बाजा बजा के सुनाओ सारे। अब सब ने अपना अपना बाजा बजा के सुना दिया। जब इसकी बारी आई तो हाँ भाई तुम भी बजाओ। उसने कहा कि मेरा अकेला नहीं बजता, सब में मिला जुला बाजा करता है। तो बिल्कुल यही बात गैर मुकल्लद कहता है कि मेरा अकेला कोई मजहब नहीं, सब में मिला जुला कहता मेरा मजहब है। तो इसी तरह इन बेचारों का मतलब क्या है, चोरी डाके का मतलब है। दो चार मसले शादियों से चला लिए और हाँ जी हम तुम्हारे जाते हैं जी, हम आप जाते हैं, उनके साथ मिल गए। और फिर दो चार मसले हम बड़ियों से ले लिए, उनके पास चले गए जी हम आप जाते हैं। इसलिए दुनिया में हमारा फिरका देश पाकिस्तान में चंद आदमी रहते हैं और बिल्कुल यतीम मस्कीन फिरका है। जो सूद आपके पास हो, ज़कात हो, हम यतीमों मस्कीनों को दे दिया करो, क्योंकि और दुनिया में कहीं हमारा फिरका मौजूद नहीं है। इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा। तो अब अंदाजा लगाएं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिका की मिसाल दी है खेत से, और बाकी जितने लोग हैं उनको भी जरूरियात जिंदगी के लिए खेत की जरूरत है या नहीं। अब हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मेहनत करके जो खेत पकाया था उसकी फसल खा रहे हैं और अकीदा यही रखते हैं कि इस फसल का पैदा करने वाला खुदा है और ऊपर मेहनत करने वाले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। हम खुदा का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी दुआएं दे रहे हैं। तो अब कोई आपके पास जमात आए वोट लेने के लिए, हम भी वोट लेकर आप क्या करेंगे कि हम मुल्क में कानून चलाएंगे। आपका मंशूर क्या होगा? उसने कहा कि सबसे पहले हम मुल्क के सब खेतों को आग लगाएंगे, उजाड़ देंगे, क्योंकि खेत मिसाल फिका की है ना। और ये मिसाल मैंने अपनी तरफ से बयान नहीं की, बुखारी शरीफ ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिसाल बयान फरमाई है। तो देखिए जिस तरह खेत के लिए पानी जरूरी है, इसी तरह इंसानी जिंदगी, इस्लामी जिंदगी के लिए फिका जरूरी है। कोई खेत बगैर पानी के पनप सकता नहीं, और जो खेत का दुश्मन है वो मुल्क का दुश्मन है। इसी तरह जो फिका का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। तो जब भी कानून आएगा फिका की शक्ल में आएगा। ये कहना कि इस्लाम तो नाफिज हो, फिका नाफिज ना हो, ये ऐसी ही बात है कि मुल्क में बारानी जमीनें रहे लेकिन खेत वगैरह उससे फसल हम उगने नहीं देंगे, बस बारिश का पानी पी पी कर गुजारा करेंगे और आपको भी बारिश के पानी पर ही रखेंगे। अब जब हम नहायत वाज़ेह दलीलों से ये बात समझा देते हैं कि फिका के बगैर कभी भी किसी मुल्क में कानून नाफिज नहीं हुआ,
और फिका की शक्ल में कानून आएगा। तो अब दो बातों से हमें डराया जाता है। एक तो ये बात कही जाती है कि फिका कितनी ही जरूरी सही, लेकिन आप नाम ना लें। क्यों? आप फिका हनफी का नाम लेंगे तो वो फिका जाफरी का नाम लेंगे, वो फिका। इसलिए आप कम से कम उनका ख्याल करें, आप फिका हनफी का नाम लेना छोड़ दे। मैंने आपसे पूछा फिका की बुनियाद कितनी चीजें हैं? 4। तो फिका जाफरी वालों का कुरान गार में है, उनका कुरान कहाँ है? तो उनकी फिका की पहली बुनियाद ही नहीं। वो फिका क्या थी जिसकी बुनियाद में कुरान ना हो। और दूसरी बुनियाद सुन्नत है, तो शिया के पास हदीस की कोई किताब ही नहीं। तो गोया दूसरी बुनियाद भी मौजूद है। इजमा उम्मत तीसरी बुनियाद है, इसको वो मानते नहीं, वरना सिद्दीकी अकबर रजी अल्लाह तआला को खलीफा बरहक मानना पड़ेगा, वरना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को खलीफा बरहक मानना पड़ेगा। इसलिए वो इजमा को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब बिल्कुल कोई हदीस ना पढ़े, खा कितनी ही सच्ची क्यों ना हो। क्यों? वरना लोग झूठी पढ़ेंगे। फिर तो क्या हम इस मशरे से सच्ची हदीसें पढ़ना छोड़ देंगे? आपके मुल्क में जाली करेंसी होती है या नहीं? होती है ना। तो आप कोई मशवरा दे के खबरदार कभी खरा पैसा भी पास न रखना, क्योंकि मुल्क में जाली करेंसी भी मौजूद है। आपके पैसे पास रखने से उन लोगों को खाम खा शाय मिल जाएगी और वो जाली सिक्का बाजार में चलाना शुरू कर देंगे। तो क्या वाकई आप इस डर से अपने सारे पैसे फेंक देंगे? जाली दवाएं दुनिया में बनती हैं या नहीं? तो अब आप यही कहेंगे ना कि खबरदार कोई अच्छी दवा ना पीना सही, क्योंकि मुल्क में जाली दवा फरोश मौजूद है। ऐसा ना हो कि आपको भी इस गुनाह में शिरकत करनी पड़े और आपके इस सही दवा पीने की वजह से उन लोगों को खाम का हौसला बढ़ जाए और वो अपनी झूठी और जाली दवाएं बेचना शुरू कर दे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो बात है, इस तरीके से अगर हर जगह आप सच को मानते हैं, झूठ को छोड़ते हैं, तो फिका में क्यों ये मानी नहीं जाती बात? हम कहते हैं कि सच्ची फिका को हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं और झूठी फिका को किसी कीमत पर मानेंगे नहीं। और एक डरावा और दिया जाता है कि अगर जरूरी फिका नाफिज करनी है तो आजकल के वकाला हैं, जस्टिस हैं, प्रोफेसर हैं, अरबी जानते, ये भी तो अरबी से वाकिफ है ना, तो इन लोगों को बढ़ा दिया जाए ये एक फिका मुरतब करने। तो पहली बात तो ये बात मुझे एक गैर मुकल्लद वकील ने कही एक तकरीर में। तो मैंने कहा अच्छा पहले आप ये बताएं कि कुल यहाँ जज हैं कितने आपके मुल्क में? फिका तकरीबन 2000 हैं। मैंने कहा पहले हैं 4 मज़ाहिब, उनमें से यहाँ सिर्फ एक मजहब है, बाकी 3 यहाँ। लेकिन आप शोर मचाते हैं कि 4 मजहबों में इख्तलाफ है, 4 मजहबों में। तो जब 2000 फिकें बनेगी तो उनमें इख्तलाफ होगा या नहीं? किसी मुल्क में 2000 फिकें बैक वक्त नाफिज हो सकेंगी जी? नाफिज तो एक ही होगी ना। तो फिर आकर वो फिका जो ख्याल कुरान में मुरतब हुई है, उसने क्या गुनाह किया है कि उसको छोड़कर उन लोगों को बिठाया जाए जो किरदार के एतबार से जाने भी हैं, जो शराबी भी हैं, और उनको कहा जाए कि तुम कानून इस्लामी मुरतब करो, जो अपने जिस्मों के लिए कानून इस्लामी पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। तो असल बात यही है कि जब खुदा की किसी नेमत की नाशुक्री की जाती है तो अल्लाह ताला फिर अकल को छीन लेते। इन्होंने फिका की नाशुक्री की। अब देखो ये अबू हनीफा की फिका के खिलाफ तो रात दिन बोलेंगे, लेकिन कोई जानी कहे ये फिका है तो ये कहेंगे आमन्ना मतलब तकना। कोई शराबी कहे मैं फिका बताता हूँ, ये सारे उसके पीछे लग जाएंगे। तो मैं तो कहा करता हूँ कि ये खुदा का अजाब और कहर है। तो ख्याल कानून के मुकाबले में ऐसी फिका की इजाजत देना और ऐसी फिका के पीछे पड़ना। तो ये लिखा है कि मसला तरावी जरूर ख्याल करें कि तरावी 8 है या 20। भाई 8 और 20 का तो कोई झगड़ा ही नहीं दुनिया में, ये याद रखें। 8 और 20 का कोई झगड़ा नहीं, तरावी है ही 20। ये जो लोग 8 का झगड़ा आज डांट बैठे हैं वो असल में झगड़ा 8 और 20 का नहीं है। झगड़ा ये है कि नमाज तरावी कोई नमाज है भी या नहीं। शिया खुलकर कहते हैं कि नमाज तरावी कोई नमाज नहीं और वो पढ़ते भी नहीं।
अहले सुन्नत वल जमात खुल कर कहते हैं कि नमाज तरावी एक मुश्किल नमाज है जो सिर्फ रमजान शरीफ में पढ़ी जाती है, जैसे जुमा सिर्फ जुमा के दिन पढ़ा जाता है, वो भी बाकी 11 महीने में नहीं पढ़ी जाती। अब गैर मुकल्दों ने ना तो शियों की तरह खुलकर इनकार किया और ना सुन्नियों की तरह खुलकर इकरार किया। जिन्होंने ये कहा कि वो जो तहज्जुद वाली नमाज है ना, 11 महीने उसका नाम तहज्जुद होता है और 12वें महीने उसी का नाम तरावी हो जाता है। नमाज एक ही है, 11 महीने नाम और होता है, 12वें महीने नाम। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं 11 महीने अपनी बीवी को बीवी कहा करता हूँ, 12वें महीने माँ कहा करता हूँ। तो अब कोई अक्लमंद पूछेगा कि आखिर वो 11 महीने बीवी रही, 12वें महीने माँ कैसे बन गई। अब ये कहते हैं कि नमाज एक है लेकिन फर्क हो गया है, 11 महीने नाम तहज्जुद, 12वें महीने नाम। 11 महीने उसका वक्त रात का आखिरी हिस्सा, 12वें महीने अव्वल हिस्सा। 11 महीने वो अकेले पढ़ी जाएगी, 12वें महीने जमात से। 11 महीने घर में, 12वें महीने मस्जिद में। 11 महीने में उसने कुरान खत्म करना कोई जरूरी नहीं, 12वें महीने कुरान खत्म करना है। 11 महीने उस नमाज को नफल कहा जाएगा, 12वें महीने सुन्नत मुअक्कदा कहा जाएगा। अब ये 6 फर्क जो इन्होंने बयान किए हैं, हम कहते हैं कि इसी 6 फर्क की एक हदीस हमें सुना दें। क़यामत तक ये ऐसी हदीस नहीं सुना सकते कि हजरत ने खुद फरमाया हो कि 11 महीने नाम ये और 12वें महीने का नाम ये होगा। इन बेचारों को तो तरावी का माना भी नहीं आता। तरावी जमा का लफ्ज है, इसका वायदा तरवीहा। आप 4 रकअत के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं ना, कोई तस्बीह पढ़ ली, इसको कहते हैं तरवीहा। तो अरबी में जमा 3 से शुरू होती है, कम से कम इससे पहले शुरू नहीं होती। तो जब आपने 4 रकअतें पढ़कर 1 मरतबा आराम किया तो हम कहेंगे ये तरवीहा है। 8 रकअतें पढ़कर 1 मरतबा फिर आराम किया तो हम कहेंगे तरवीहा तैन, 2 तरवीह हो गए। और 12 रकअतें पढ़कर जब तीसरी दफा आराम करेंगे तो कम से कम उस पर लफ्ज तरावी इस्तेमाल हो सकता है, उससे पहले तो लफ्ज तरावी इस्तेमाल हो सकता ही नहीं। तो इन बेचारों को अगर तरावी का माना भी आता होता तो ये कभी 8 के साथ लफ्ज तरावी इस्तेमाल न करते। अब ये जो हदीसें आप लोगों को दिखाते हैं वो सारी तहज्जुद के बारे में। ये ऐसे ही मिसाल समझे, आप यहाँ असर की कितने फर्क पड़ते हैं? तो मैं कहता हूँ कि आज ऐलान करता हूँ कि असर के 3 फर्ज हैं। आप कहें वो कैसे? मैंने कहा तीसरी में। मैं हदीस भी एक बार देता हूँ जिसमें 3 रकअत का जिक्र आ गया। अब मौलवी साहब उठे कि मुझे मेरे मुफ्ती बाद में पूछेंगे कि आपको ये क्यों नहीं मिली काम का 1 रकअत ज्यादा हमें पढ़ाते रहे। जिन्होंने उस पर हदीस देखी कि ठीक लिखा था 3 रकअत, लेकिन 7 लफ्ज मगरिब का था, असर का नहीं। तो ये मुझे कहने लगे कि आपने तो असर की रकअतें बतानी थी और ये तो मगरिब लिखा है। तो मैं कहता हूँ आपको नहीं पता, ये मगरिब और असर एक ही नमाज के 2 नाम। मगरिब और असर एक ही नमाज के 2 नाम हैं। बिल्कुल यही कैफियत इनकी है। कहते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान में 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ा करते। तो हम कहते हैं कि सारी दुनिया जानती है कि जो नमाज सारा साल पढ़ी जाती है उसका नाम तहज्जुद है। तो ये तो तहज्जुद की हदीस है। तो कहते आपको फिर पता ही नहीं, ये तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज के 2 नाम है। अब हम ये पूछते हैं कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाना में जब मस्जिद नबवी में 20 रकअत का जमात हो रही थी, अम्मा आयशा सिद्दीका हयात थी या नहीं? उनमें नबी की सुन्नत का इतना जज्बा था जितना आज के गैर मुकल्दम में है या नहीं? ज्यादा था। वो कहते पहले आज का जज्बा सुन ले। एक आदमी रमजान में बिल्कुल रोजा नहीं उसने रखा, कोई नमाज नहीं पढ़ी, ना रोजा रखा ना नमाज पढ़ी, इसको कभी गैर मुकल्लिद के खिलाफ कोई इख्तियार शायद नहीं करेंगे, ना उसको कुछ कहेंगे जाके। ये बेचारी हमारी तबलीगी जमात है ना, लोगों ने इनका नाम रखा लसूरा पार्टी। ये जिसको चमट जाते एक दफा तो मस्जिद दिखा देती, आगे उसकी मर्जी। तो अब देखिए इनका काम है नमाज बेनमाजियों के पास जाना,
बेचारे मिन्नतें करते हैं, उनको ले आते हैं एक दफा मस्जिद। गैर मुकल्लद कभी बेनमाजी के पास नहीं जाते। जब हमारी तबलीगी जमात ने मिन्नतें करके उसको नमाज पर लगा लिया, अब वो हो गया नमाजी। अब ये आ जाता है, एक इधर से आएगा तेरी नहीं होती, दूसरा इधर से आएगा तेरी नहीं होती। तो ये फिरका है नमाजियों के दिलों में वजह डालने वाला। जब तक कोई नमाज नहीं पढ़ता उस वक्त तक ये कुछ नहीं कहते जाते। तो यही हाल रमजान शरीफ में है। जिसने पांचों नमाजें नहीं पढ़ी, रोजा भी नहीं रखा, ना उसके खिलाफ कोई तकरीर है, ना कोई इश्तहार है, ना कोई इनामी चैलेंज है। अब जनाब जिस बेचारे ने रोजा रखा, पांचों जमातों में तकबीर उला में शरीक हुआ, अब रात को तरावी बेचारा 20 पढ़ बैठा, जनाब उसके कपड़े फाड़ेंगे। 20,000 रुपए का चैलेंज, 20,000 रुपए का चैलेंज, 25,000 रुपए का चैलेंज। इस बेचारे ने ये गुनाह कर लिया, 20 तरावी पढ़ बैठा। आप अंदाजा लगाए कि ये फरिश्ते 11 महीने जन्नत को आराधना करते हैं रमजान की खुशी में, और गैर मुकर्रर 11 महीने मीटिंगें करते हैं कि भाई पिछले साल खानपुर की किस मस्जिद में तरावियों पर लड़ाई नहीं कराई थी, इस पर आवाज जरूर करानी है बात बनाई। तो अब बेचारों का मिशन आप देखे है क्या। हमारी तबलीगी जमात नमाज पर लगाती है, ये आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं कि अब तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, और फिर बड़े खुश होते हैं। ये तबलीगी जमात वाले कल कभी वापस जाते हैं ना रायगंज, तो वहाँ अपनी कार्रवाई सुनाते हैं, हमने ये किया और इस तरह हमें कहा गया, हमने यो किया। तो ये भी रात को बैठ जाते हैं और कार्रवाई सुनाते हैं। एक कहता है आज मैंने 3 हरदियों को कहा था तू बेनमाज, दूसरा कहता मैंने कहा था कि तू मुशरिक भी है, तो कहते शाबाश तू ज्यादा अच्छा है। तीसरा कहता मैंने तो आज सारा दिन छुट्टी ली थी और फिर कर एक दुकान पर कह रहा था कि तुम बेनमाज हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम्हारी नमाज नहीं होती। मैंने कहा बस जन्नत का सर्टिफिकेट तू ही आज लेके आया, तू सब कुछ करके आया, इतना बड़ा काम। तो अब देखिए बाद हमारे हनफी दोस्त भी उनकी देखा देखी निकल जाते हैं हाथ पढ़कर। मैं आपसे एक मसला पूछ कर खत्म करता हूँ। ज़ुहर के पहले कितनी सुनते आप पढ़ते हैं? ये मौकदा है या गैर मौकदा जी? तो आप एक मशवरा मैं आपको दूंगा, महीने में एक दिन 4 की बजाय 2 पढ़ा करें, ठीक है जी? क्यों? महीने में 1 मरतबा। तो देखो आपको कभी तसव्वुर में भी ये बात नहीं आएगी कि हम 4 सुन्नतों को 2 पढ़े, आएगी? इसी तरह 20 रकअत तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह ज़ोहर की 4 रकअतों को 2 पढ़कर चले जाना, ना आपका दिल मुतमिन होगा इस करके मैंने सुन्नत पढ़ी है। जो लोग 8 पढ़कर चले जाते हैं वो 2 सुन्नतों को जाय करते हैं। और किस महीने में? जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर होता है। जिसमें नफल पढ़ने का सवाब जो है अजर वो फर्ज के बराबर होता है। 2 सुन्नतें कौन सी जाया करते हैं? एक तो ये 8 पढ़ के चले गए, 12 नहीं पढ़ी तो सुन्नत पूरी ना हुई, दूसरे कुरान भी पूरा नहीं सुना। एक कुरान पढ़ना या सुनना ये सुन्नत है। तो अब अंदाजा लगाएं, रमजान शरीफ में तो लोग कोशिश करते हैं कि नवाफिल भी ज्यादा पढ़े जाए, कोशिश करते हैं ना अल्लाह के नेक बंदे। और गैर मुकल्लफों की तो बात ही नहीं बेचारों की। अल्लाह ताला ने देखो वो नमाज के दुश्मन है ना गैर मुकल्लफ, तो खुदा ने उन पर एक अजाब भेजा हुआ, शायद आपने कभी देखा या नहीं। आगे पीछे खारिज हो ना हो, नमाज में उनको खारिज जरूर होती है। कभी यहाँ उंगली है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी बस जो नमाज शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने उनकी नमाज में उन पर खारिज मुसल्लत कर दी है। बस ना नमाज से फारिग होंगे, फिर ना कोई खारिज ना कुछ। सुकून से नमाज पढ़ सकता ही नहीं यार मुकल्लफ। वो कहता था तुम्हारी नहीं होती, लेकिन उनका नक्शा देखने वाला होता कि उनकी क्या होती। तो इसलिए 20 रकअत तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। 8 रकअत के साथ, आपको तो कहीं 8 है, आप सिर्फ एक बात पूछें, 8 रकअत के साथ तरावी का लफ्ज़ अल्लाह के नबी से, किसी खलीफा राशिद से, किसी एक सहाबी से, किसी एक ताबी से, किसी एक तबा ताबी से दिखा दें, हम 25,000 नाम देंगे। पूरे ख्याल कुरान में 8 रकअत के साथ तरावी का लफ्ज़ मिलता ही नहीं। 20 के साथ हम दिखाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला इकट्ठा करते कारियों को फरमाते हैं तरावी पढ़ाओ, हम का तरवी हाथ इजरीना रकाती, तरावी का लफ्ज़ साथ मौजूद है। 20 रकअत के साथ हम दिखा सकते हैं, लेकिन 8 के साथ तरावी का लफ्ज़
یہ سارے مل کر نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے ہمارے جو حنفی دوست اتنی سستی کرتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے پیچھے تو لوگ تہجد کے لیے مشکل اٹھتے ہیں نا, رمضان میں اٹھ کر بھی تہجد سے معروم ہے, وہ تہجد نہیں پڑھتے. لیکن آپ لوگ جو ہیں یہ تہجد بھی پڑھیں اور تراویح بھی بیچ پوری پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واطوب. اختلاف کہاں ہوتے ہیں کہ بھئی یا تو ہمیں قرآن میں بھی حکم نہیں مل رہا, حدیث مبارک میں بھی حکم نہیں مل رہا, اور اجماع صحابہ میں بھی کوئی فیصلہ نہیں مل رہا, اور کسی ایسا مسئلہ بھی نہیں مل رہا جس پر ہم قیاس کریں. اب مجتہدین بنی اتحاد کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, تو لازمی بات ہے ایک مجتہد کے اجتہاد میں اور دوسرے مجتہد کے اجتہاد میں فرق آ جائے گا. کتنی بات ہے, یہ تو ایک یعنی نیچر ہے. جب دو آدمی کسی بات کو سوچنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہر آدمی کی سوچ اپنی ہوتی ہے, ہر آدمی کے سورس آف معلومات جو ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں, اس لیے ان کے اندر اختلافات پیدا ہوتی ہیں. یا مثلاً ایک مسئلہ ایسا آ گیا تو اس میں دو حدیثیں مل رہی ہیں, دو حدیثیں مبارک جو ہیں مل رہی ہیں. مثلاً ایک حدیث مبارک کہہ رہی ہے کہ کوئی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب ایک حدیث مبارک یہ آ رہی, اور دوسری حدیث مبارک ہمیں ابی موسیٰ اشعری کی مسلم شریف میں مل رہی ہے جس میں حضور نے نماز سکھلائی ہے, جس میں نماز حضور نے سکھلائی. یہاں تو فاتحہ کی مطلق فضیلت کا ذکر ہے نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث مبارک ہے جو تعلیم صلاۃ میں ہے, یعنی جہاں حضور نماز پڑھنا سکھلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اذا کبر فکبروا, جب امام کہے اللہ اکبر تو بعد میں کہو اللہ اکبر. اذا رکع فرکعوا, جب رکوع کرے تم بھی رکوع کرو, جب سجود کرے تم بھی سجود کرو, جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. اسی حدیث میں یہ لفظ بھی آ گیا کہ اذا قرأ فانصتوا, اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اسی حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, تم کہو آمین. اب یہ حدیث مبارک بھی آ گئی. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بھی آ گئی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس آدمی کا امام موجود ہے تو امام کا پڑھنا, مقتدی کا پڑھنا. یہ بھی حدیث مبارک آ گئی. اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا کہ اگر امام کوئی غلطی کرے, مقتدی نے غلطی نہیں کی لیکن امام سجدہ کرے گا تو ہم سب سجدہ کریں گے, حالانکہ غلطی تو صرف امام نے کی تھی, ہم مقتدیوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. لیکن کیونکہ امام کی غلطی سب کی غلطی بن گئی, امام کی سیت جو تھی وہ سب کی سیت بن. اب جب کتنے حدیثیں جمع ہو گئی تو اب محدثین کرام, ائمہ فقہاء احکام, ائمہ مجتہدین, سب نے پھر حدیثوں کو سمجھنے کے اندر اپنے اپنے پاس کے مطابق کوشش کی کہ ہم سمجھیں اور کوشش کریں تاکہ حضور پاک کی حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہو, حضور کے حکم کے مطابق ہماری نمازیں ہوں اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. تو بعض ائمہ نے تو یہ سمجھا, انہوں نے کہا کہ زیادہ بحث میں ہم کیوں پڑھیں, بس جب فاتحہ کے بغیر نماز, حضور نے فرما دیا نماز ہی نہیں, بس فاتحہ پڑھو, چاہے مقتدی ہے, چاہے امام ہے, چاہے جاری نماز ہے, چاہے سری نماز ہے, چاہے علیحدہ پڑھ رہا ہے, امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے, چاہے فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, تو بس فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی. انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھ لیا. اور باقی ائمہ نے فرمایا, انہوں نے کہا کہ بھئی جب قرآن کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ, قرآن سے تو جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ کرو. اور حضور نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا, جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. انہوں نے کہا ہاں بس اب اس کا حل یوں کرتے ہیں کہ جس نماز میں امام پڑھ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں, انہوں نے کہا اس سے نہ پڑھو. جیسے فجر کی نماز ہے, مغرب کی نماز ہے, عشاء کی نماز ہے, وہاں 4 سے پڑھے گا نا, زور زور سے پڑھے گا, تو ہم سن رہے ہیں, سننے کا بھی وہاں سے نہ پڑھو, تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہو جائے اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو. تو انہوں نے کہا جس میں ہم نہیں سنتے ہیں, جیسے ظہر ہے, عصر ہے, امام پڑھ بھی رہا ہو لیکن ہم تو نہیں سن رہے, انہوں نے کہا بھی اس میں فائدہ, تاکہ ان دو یعنی ظہر اور عصر میں اس حدیث پہ عمل ہو گیا, اور فجر اور مغرب اور عشاء میں اس حدیث پہ عمل ہو گیا کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو تم چپ کرو. تو انہوں نے بھی اب دیکھی ان کا اجتہاد یا ان کی بات کا تقاضا کیا ہے کہ حضور کی حدیثوں پر کسی طرح عمل ہو جائے, اور کوئی حضور کا فرمان جو ہے ایسا رہ نہ جائے کہ ہم اس کے عمل سے محروم